children, welcome again to Akash Baiju's NEET channel. I am Dr. Pankuri Miglani, your biology teacher, and we are meeting for another amazing session. As I promised that I'm going to hold your hand in your entire NEET journey, we are here to do NCERT line by line. Today, for the very, very, very important kingdom, fungi. Yeah, so we are going to discuss every line of NCERT when it comes to fungus. Before that, don't forget to download the Akash Baiju's app and you can explore it free of cost for 14 days. Yeah, check out all the wonders that are present on this magical app. First time in the country, which is going to change the face of education and change the life of every NEET aspirant. It is going to make studying for NEET exams so effortless, yeah, and so confirmative of your selection. Try it out and let me know how did you find the app. Yeah, now people, don't forget to like, share the session and subscribe to this country's best channel for NEET, Akash Baiju's NEET. If you have concerns about anything, about our courses, about the enrollment, about questions, about the subject, put all your concerns in the comment section and team and I will take care of them. Definitely. Yeah, we are with you in every step of your preparation. Isn't it? So people, today we are going to take out questions. Every possible question from Kingdom Fungus. And remember, what is the tagline of these sessions? Question इन्हीं में से आएगा. आएगा या नहीं आएगा? You can also solve previous year papers, previous year questions to actually know the importance of every line of NCERT. Share the session, call out your friends, call everybody in the class and let's make this a super fueled class. है ना? Give me a thumbs up in the chat section right now. Let's get the Josh on, pick up our beautiful NCERTs, open the book, get the pencil, yes. Please don't clutter it with a lot of ink because you need the book for another year. That is your entire 11th, actually 2 years, 12th and till your NEET exam happens. Now, the chapter of biological classification last week was Monera and Protista. है ना? और पूरी दुनिया ने मुझे बोला मैम प्लांट फिजियोलॉजी चाहिए. मिली ना? ऐसे तो पहले कभी नहीं मिली. इतने अच्छे से मिली. सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले. मैम मिले. मैम ने एक्सप्लेन किया. सब मिला. Okay? So whatever you ask, you will get it. But you have to hold the hand. You have to ask for it. है ना? तो आज आई है किंगडम फंगस. भाई मैंने ये चैप्टर स्पेसिफिकली चूज किया है, कोई तो रीजन होगा. ये चैप्टर हमने अपनी मिशन MBBS 2024 सीरीज में कंप्लीट किया काफी इन डेप्थ, है ना? और वहां पे भी मैम ने क्वेश्चंस करवा दिए. देयर इज नो स्टॉपिंग आकाश बाइजूज NEET. वी आर गोइंग टू गिव यू everything you need to become a ranker. Isn't it? So people, क्वेश्चंस तो हमने कर लिए. अब कहीं आप NCERT पढ़ने में देर ना कर दो. उसके लिए आई एम हियर टू स्टार्ट रीडिंग किंगडम फंजाई. लेट्स गेट टू नो दिस सुपर इंटरेस्टिंग एंड सुपर स्कोरिंग किंगडम. नाउ NCERT से बाहर हम जाते हैं क्लासेस में. जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, they are not attending the sessions for Mission MBBS 2024, I would like you to explore the playlist of class 11th series which has the name Mission MBBS 2024. उस playlist में आपको मेरे सारे lectures मिलेंगे. उनको देखिए, अपने doubts रखिए and also attend the NCERT line by line sessions. You can still be a part of the series. Yeah, we are going to do the chapter of cell. Yeah, we are in fact doing the chapter of cell, which is the very huge chunk in the NEET syllabus. है ना? सेल और सेल डिवीजन में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी. तो बच्चों शुरू करें. रेडी? पक्की बात? चलो
With the josh and the smile on the face, we start. The fungi constitute a unique kingdom, and that's why the excitement of heterotrophic organisms. फंगस की लाइन क्लियर थी. उसने बोला कि मैं खुद खाना नहीं बनाऊंगी, मैं मेहनत नहीं करूंगी. आई एम गोइंग टू टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ न्यूट्रिशन. ध्यान रखिएगा बच्चों कि ऑर्गेनिज्म की हमें लगता है कौन पूछेगा न्यूट्रिशन के बारे में. कई बार नीट में पेपर में इतने सीधे सीधे सवाल भी आ जाते हैं एंड वी एंड अप डूइंग नेगेटिव मार्किंग. They show great diversity in morphology and habitat. You must have seen fungi on moist bread and rotten fruits. The common mushroom that you eat and toadstools are also fungi. All these examples have been shown to you, taught to you in the class. In fact, इस सेशन के बाद आप क्लास को रीवॉच करें. ऐसे पढ़ाई कर लो कि भाई कोई एग्जाम दे दो, कोई क्वेश्चन दे दो, मेरा तो होने ही वाला है, मेरी सिलेक्शन तो पक्की है. ठीक है, तो वॉच द क्लास आफ्टर एनसीईआरटी रीडिंग विद मैम. व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स are due to parasitic fungus. Some unicellular fungi, yeast for example, are used to make bread and beer. Other fungi cause diseases in plants, wheat, bread and beer. Other fungi cause, sorry, that was a repetition. I'll read it again. Other fungi cause diseases in plants and animals. Wheat rust causing. वही मैं सोच रही थी यार, इसको ना I'm going to pick up the red ink and ये हो गया question 2. तो Puccinia is the genus of the fungus. और ये बहुत परेशान करती है wheat में rust disease करके. There will be patches, rusty patches in fact. Slowly the plant dies. Okay? It is an important example. But some are source of antibiotics, penicillium. Fungi are cosmopolitan, present everywhere, and occur in air, water, soil, on animals and plants. अच्छा, अब इसको पसंद होता है. ये है क्वेश्चन नंबर 3. What are the environmental conditions that the fungus prefers? It is warm. Warmth चाहिए इसको. कहने का मतलब है रूम टेम्परेचर दे दो. हाँ, रूम टेम्परेचर दे दो, सॉर्ट ऑफ 30 डिग्रीज, 25 to 30 डिग्रीज दे दो इसको. शी इज हैप्पी. एंड ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर चाहिए. देखा है ना आपने कि ये कंडीशंस हो तो फंगस ग्रो करती है. ये मैंने क्लास में आपको वंडर करवा दिया था, व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर. ओके, सो आई नो मेनी ऑफ यू हैव नॉट अटेंडेड द क्लास. गो बैक एंड वॉच इट. क्या हो गया फिर, है ना? Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial and fungal infections. With the exception of yeast, which is unicellular. भाई ये तो भाई इतना important question है. कितने question निकाले हैं हमने? 3 अभी तक. Question number 4. पिछली क्लास में हमने प्रोटिस्टा से 30 question निकाल लिए थे. Okay? Fungi are filamentous. Filamentous body होती है इनकी. Their bodies consist of long, slender, thread-like structures called hyphae. Characteristic feature है कि filamentous यानी कि hyphae ऐसा नेटवर्क बना लेंगे. Mycelium बोलते हैं उसको, सब पढ़ाया है मैंने. Types of mycelium भी पढ़ाया है. The network of hyphae is known as mycelium. Super important question. ठीक है, मैं इसी के साथ इसको लिंक कर रही हूँ. 5 क्वेश्चन स्ट्रक्चर तक आ चुके हैं. सम हाइफे, फिर मैंने ये सेपरेट पढ़ाया था. मेरे रेगुलर बच्चे बोलेंगे कितने लोग हैं, राइट इट इन द चैट सेक्शन. यस मैम, जो हम उस क्लास में थे और आपने ये पढ़ाया था. सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. मल्टी न्यूक्लिएटेड. क्वेश्चन नंबर 6, अभी भी रेड पेन है. दीज आर कॉल्ड सीनोसाइटिक हाइफे. बोले तो एसेप्टेट, है ना? एसेप्टेट. कोई प्रॉब्लम? नो मैम, हो ही नहीं सकती. अदर्स हैव सेप्टेट, बना के भी दिखाया था. और क्रॉस वॉल्स, तो ये मल्टी सेल्यूलर हो जाएंगे. अच्छा, इसमें से मेरा फेवरेट क्वेश्चन मेरा जो इस पैराग्राफ से है कि भाई मुझे लगता है ये आना ही आना है, क्योंकि फंगल सेल्यूलोज काइटिन इसका काफी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज जैसी नहीं बनी हुई है. भाई इसी रीजन से हम इसको प्लांट किंगडम में नहीं रख पाए. तो सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स. आया? बिल्कुल आया. मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक.
and absorb soluble organic matter from dead substrates. ये क्या बोल रहा है? saprophytic nutrition. Saprophytes, most of the fungus. ये जो वर्ड आ जाता है ना, ये ऐसे की ऐसी स्टेटमेंट वो बनाकर ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में दे देगा मेरे बच्चों को. तो मैंने क्या किया, इसको अभी लिखवा दिया. क्वेश्चन नंबर 8 लिखते जाएंगे, रेस्ट नहीं लेना है, सांस लेना है, क्वेश्चन निकालना है. सही बात है. तो मोस्ट फंजाई हेटरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब. सैप्रोफाइट्स हैं मोस्टली ये. दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स. कुछ पैरासाइट्स भी हैं और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहती हैं. पढ़ चुके हो तुम. सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज कमिंग एवरी ईयर इन वन फॉर्म और द अदर. आई कांट टेल यू, आई कांट एम्फेसाइज इनफ कि यार ये एग्जामिनर्स आर सो इन लव विद द कॉन्सेप्ट ऑफ lichens and mycorrhiza. Aya, these concepts get repeated. Lichens happened. In biological classification, we have studied about lichens. है ना, जो exception था. मैंने आपसे last lecture लिया था मैंने आपका इस पर. और mycorrhiza plant kingdom में आता है. Reproduction in fungi can take place. Reproduction भी इसकी enhanced है. Vegetative means, that is fragmentation, fission and budding. Asexual reproduction is by spores called conidia or sporangiospores or zoospores. अब ये जो asexual spores हैं, ये मैंने इतने प्यार से, इतनी शिद्दत से आपको बताए हैं क्लास में. तो बच्चों ये वाला पार्ट तो देख ही लो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. आप 2x की स्पीड पे 1.5x की स्पीड पे देखो, नोट्स निकालो और मजे करो. ओके, तो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है. ये जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, सारे को मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिख रही हूँ. इसका मतलब है एक लाइन नहीं, ये सारा आपको करना है. oospores, ascospores and basidios, ये भी मैंने क्लास में काफी प्यार से अच्छे से बता दिया है. Now, the various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies. The sexual cycle involves the following steps. देखो, फंगस में से क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी कोई पेपर नहीं बनेगा. हाँ, सो जो आज की क्लास है उसमें से एमसीक्यू आ ही रहा है. ऐसा नहीं है कि शायद आ जाएगा. मैम आ गए हैं क्लास अटेंड करने, आ जाएगा तो आ जाएगा. ऑल राइट. तो रिप्रोडक्शन में ध्यान रखिएगा कि वो क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से भी दे सकता है, स्ट्रक्चर से भी दे सकता है, उसकी हैबिटेट से भी दे सकता है, न्यूट्रिशन से भी दे सकता है, क्योंकि फंगस है ही इतनी स्पेशल. अब सेक्सुअल साइकिल में क्या क्या फेजेस हैं उस पे हम सवाल करते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. हाउ मेनी क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू? 9. 10 questions. So 11th question is about only sexual cycle phases. The first is plasmogamy, then karyogamy and then meiosis in the zygote. इसको काफी डिटेल्ड मैनर में साइकिल बनाकर क्लास में हमने पढ़ा है. यू कैन वॉच इट. लेकिन एनसीईआरटी एक्सपेक्ट करती है कि आपके दिमाग में ये पक्का से हो. दिस इज अगेन, आई हैव मार्क्ड इट, क्वेश्चन नंबर 11. When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae, body तो इसकी haploid होती है, of compatible mating types come together and fuse. In some fungi, the fusion immediately results. This is a very important point. Question number 12. Results in the formation of 2N structure. है ना, जिसने मेरे साथ पढ़ाई की है उसको पता है ये क्या बात हो रही है. वो नहीं परेशान होगा कि मैम ने इमीडिएटली क्यों बोला कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. जिसको भी ये पता है, राइट इट इन द चैट सेक्शन. कम ऑन पीपल, द मोर यू इंटरेक्ट एंड पार्टिसिपेट इन द क्लास, द बेटर इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. ट्राई करके देख लो, है ना. अब हाउएवर इन अदर फंजाई, ascomycetes and basidiomycetes. Favorite question. Question number 13. An intervening dikaryotic stage, so nicely shown to you in the class, that is 2 nuclei per cell, occurs and it is called dikaryon, or in the phase is dikaryophase. Yeah, this is the most important question in the entire topic of fungus, I tell you. Okay? Later, the parental nuclei fuse and the cells become diploid. Ultimately diploid ही बनेगा.
The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs, leading to formation of haploid spores, ascospores or basidiospores. Chamka. Keep commenting in the chat section. I will read all your comments. जानते हो तुम लोग मुझे. All your comments. Okay? The morphology of the mycelium. This is, remember how I taught you in the class? ये तीनों चीजें क्वेश्चन नंबर, यार एक तो मैं भूल जाती हूँ कितने क्वेश्चन, 13 हो गए हैं, 14वां क्वेश्चन. देखो अभी तक मैम की रेड इंक ऑन है, क्योंकि ऐसा इनमें से कोई ऐसा टॉपिक, एक लाइन ऐसी है ही नहीं जिसमें से क्वेश्चन ना आया हो और बार बार ना आया हो. Okay, the morphology of the mycelium, mode of the spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of kingdom into various classes. पहली आई जी phycomycetes. Okay ma'am, ready? Let's dig deeper into phycomycetes. Right? So members of phycomycetes are found in aquatic habitats, on decaying wood in moist and damp places, or as obligate parasites. The mycelium is asexual. There you go. Question number 15. Primitive fungus. मैंने ये क्लास में बार बार आपको बताया. Primitive fungus. हाँ, देखो एनसीईआरटी को डीकोड करना, उसको क्लीनली प्रेजेंट करना, उसके लिए आपको टीचर से जुड़ना जरूरी है. उसके लिए आपको रेगुलर क्लासेस में होना जरूरी है. ये वो फंगस है जिसमें सेप्टा नहीं है, तो ये कैसी हुई भाई? सिनोसिटिक हुई. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ज़ूस्पोर्स. ये रैंकर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि मोटाइल और बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स. ठीक है, तो ज़ूस्पोर्स आगे नहीं प्रोड्यूस होते हैं, इसी में ही होते हैं. These spores, अच्छा ये जो स्पोर्स हैं, ए प्लानोस्पोर्स या नॉन मोटाइल स्पोर्स, इससे डरने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मैंने आपको बताया था स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगी ज़ाइगोमाइसेटीज, उसी को ही यहाँ पे इसने ए प्लानोस्पोर्स लिख दिया है. ठीक है ना, तो उसमें आप क्लासिफिकेशन में टेंशन मत लीजिए, आप ए प्लानोस्पोर्स या स्पोरेंजियोस्पोर्स आ जाए, दोनों ही हमने नॉन मोटाइल लेकर रखे हैं. These spores are endogenously produced in the sporangium. A zygospore is formed by the, देखो इसने क्या किया एनसीईआरटी ने, कितने लोग हैं राइट इट इन द चैट सेक्शन जिनको समझ में आया कि इसने खिचड़ी बनाई है ज़ाइगोमाइसेटीज और ओमाइसेटीज की, और उस खिचड़ी को साफ तरीके से किसने बताया है? क्लास में मैम ने बताया. तो क्लास को देखें, दिस क्लासिफिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेयर पीपल लूज देयर मार्क्स. ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय, ये ज़ाइगोमाइसेटीज में बनेगा. These gametes are similar in morphology. Okay? जब भी प्लाज्मोगेमी होती है तो उसमें आइसोगेमी हो सकती है, एनाइसोगेमी हो सकती है, ऊगेमी हो सकती है. Example is म्यूकर and rhizopus, the bread mold, and Albugo candida, the parasitic fungus. ठीक है, तो जो क्रूसिफर्स में the parasitic fungus on mustard जो white spot करती है, that is your Albugo candida. और आप भी जानते हो कि राइजोपस एंड म्यूकर ये बिलोंग करती है ज़ाइगोमाइसेटीज को, और एल्ब्यूगो बिलोंग करती है oomaइसेटीज को. क्वेश्चन नंबर 16. अब इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. ये क्वेश्चन आएगा, 16 क्वेश्चन हो गए. क्वेश्चन नंबर 17, और ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है. सो क्वेश्चन नंबर 18 निकल आए क्वेश्चन. अगला चलते जी, एस्कोमाइसेटीज. चले, पक्की बात, प्रॉमिस. एडवांस फंगस एस्कोमाइसेटीज, मोस्ट कॉमनली सीन बेसिडियोमाइसेटीज होगी. एस्कोमाइसेटीज की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारे लिए सबसे ज्यादा है. सो कॉमनली नोन एज सैक फंजाई. क्वेश्चन नंबर 18. The ascomycetes are mostly multicellular. Cool. Penicillium or rarely unicellular, that is yeast. Example दे दिया, yeast is the only one. Saccharomyces क्लास में बता दिया. Question number 19. They are saprophytic, decomposers, parasitic or coprophilous, growing on the dung.
ठीक है, कॉप्रोफाइलस भी होती है। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन हुए भाई? क्वेश्चन नंबर 9, 20वां क्वेश्चन निकला है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार हम टिके हुए थे ज़ूस्पोर्स और ए प्लानोस्पोर्स या स्पोरेंजियोस्पोर्स, दोनों में से एक। जो भी क्वेश्चन आया टिक करोगे कि फाइकोमाइसिटीज में कौन सा स्पोर होता है। वो स्पोरेंजियोस्पोर भी दे सकता है, ए प्लानोस्पोर भी दे सकता है और ज़ूस्पोर भी दे सकता है। लेकिन यहां पर कोनिडिया प्रोड्यूस होंगे। कैरेक्टरिस्टिक, वेरी नाइस फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एस्कोमाइसिटीज। क्वेश्चन, इसको मैं स्टार लगा रही हूं। क्वेश्चन नंबर 21 मैम, प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली। इसीलिए स्पोर्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने जरूरी है। एसेक्सुअल स्पोर्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है भाई एक्सोजीनस स्पोर है, एंडोजीनस स्पोर है, और फिर हम क्या करते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं है, सिलेबस से बाहर था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। तो आपको क्लास में वो क्लासिफिकेशन बता दी है। ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर विच इज द इरेक्ट माइसीलियम। स्पेशल माइसीलियम क्यों बोला भाई? अगर इस तरह से है माइसीलियम तो ये वाला माइसीलियम इरेक्ट माइसीलियम होगा, बाकी तो ये सेप्टेट ही होगा क्योंकि एस्को की बात हो रही है, और उस पर बनेंगे कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली। बहुत 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 अच्छा, एस्कोमाइसिटीज में से ना क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये भी लिख लो कहीं पे। somebody should write it in the comment section for everybody। और ये एंडोजीनस प्रोड्यूस होते हैं एस्कस में। These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps। बहुत सारे एस्कस मिल जाते हैं एस्कोकार्प्स में। क्लास में डायग्राम की हेल्प से मैम ने बता दिया था। ये सारी कहानी एक क्वेश्चन बनती है भाई, आया समझ में? भाई इसके ऊपर, इस माइसीलियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनेगी एस्कोकार्प। इज दैट क्लियर? कहानी सिर्फ ये एग्रीगेशन ऑफ माइसीलियम हो रही है, और एस्कोकार्प के अंदर एक सैक बनेगा एस्कस, और एस्कस के अंदर बनेंगे एस्कोस्पोर्स। सम एग्जाम्पल्स, देयर यू गो, ये क्लास में लिखवाए थे। इसमें से क्वेश्चन अगेन द रेड इंक, देखो पूरी फंगस में ही आई हैवंट चेंज्ड द पेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज, यू आर वेरी लकी इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, क्योंकि इन एमसीक्यूज से बाहर आना वुड बी अ rare phenomenon। Some examples are Aspergillus, Claviceps purpurea, Neurospora. Neurospora is used in genetic work, so Drosophila of the plant kingdom। दिखवाए। Morels and truffles are edible ascocarps। ये ऐड कर लेना, ये बड़ी confusion है। जो क्लास वाले बच्चे हैं उनको तो ये लिखवा दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का मतलब है सारी की सारी उसकी इंपॉर्टेंस। अब आ गए जी हम, सॉरी, नाउ वी मूव ऑन टू Basidiomycetes, the last one, not the last one, there is imperfect fungus also। commonly known forms of Basidiomycetes are mushrooms। हाँ, तो इसमें ना ये माना जाता है it is the commonly visible fungus, क्योंकि इसकी जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं वो इतनी बड़ी होती हैं कि दिख जाती हैं। इनफैक्ट मशरूम्स जो हम खाते हैं those are Basidiocarps। Bracket fungi, question। Okay, how many questions do we have? We have 23। 23 means this is 24th question। Enjoying the class? If you're enjoying the class, like the session and subscribe to the channel। Also share the session, yeah, spread the love। puff balls भी इसी में आती हैं, क्लास में मैंने दिखाई भी है। ठीक है, दे ग्रो ऑन सॉयल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स, ये तो आदत ही है फंगस की। और पैरासाइट, अच्छा ये जो रस्ट एंड स्मट डिजीजेस है ना, ये मैंने क्लास में बताया था, ये बेसिडियोमाइसिटीज को बोलता है रस्ट एंड स्मट फंगस से क्वेश्चन आता है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 25 इसको दे दिया। अब मेरे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, दिख नहीं रहा है, आपकी बुक में ही क्लीन होना चाहिए।
आपको पता होना चाहिए, मैम ने 30 MCQs फंगस में से निकाले थे, मुझे वो 30 MCQs पता होने चाहिए बिफोर आई मूव ऑन टू द एग्जाम सेंटर। प्रॉमिस करना है ये, है ना। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड इन सेप्टेट, कोई बताने वाली बात नहीं है, एडवांस फंगस है। एसेक्सुअल स्पोर्स है, दिस इज माय फेवरेट लाइन, इसके पास कोई एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, कोनिडिया भी नहीं है, ये रैंकर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन है फ्रैगमेंटेशन से, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, एंथ्रीडिया उगोनिया नहीं है, ठीक है। तो इधर क्वेश्चन नंबर 27, ऐसी कौन सी फंगस है, ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें भाई सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं है, सीधा बेसिडियोस्पोर्स फ्यूज कर जाते हैं, चक्कर ही नहीं है। उसने कहा है मैं रखूंगी सिंपल अपना काम, टाइम नहीं वेस्ट कर रही मैं। So, but plasmogamy is brought about by the fusion of two vegetative or somatic cells. भाई माइसीलियम ने ही गैमेट बनाया, माइसीलियम तो वेजिटेटिव था, इसको बोलते सोमैटोगेमी, क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनाए मैंने, तो माइसीलियम का ही सेल था जो फ्यूज कर गया, बॉडी का ही सेल फ्यूज कर गया, क्योंकि वो हैप्लॉइड है। हमें ऐसा नहीं होता ना, बॉडी का सेल सोमैटिक सेल फ्यूज नहीं कर सकता जाइगोट बनाने के लिए, क्योंकि हमारे सोमैटिक सेल्स डिप्लॉयड हैं, हम ठहरे 2N ऑर्गेनिजम्स, लेकिन फंगस ठहरी N ऑर्गेनिज्म। बेसिडियोमाइसिटीज के पास था दिमाग, उसने बोला देख यार मैं हैप्लॉइड हूँ, मैं काहे इतना टेंशन लूँ सेक्स ऑर्गन्स बनाने का, और वो वेजिटेटिव सेल्स को करवाया फ्यूज सोमैटोगेमी और बना दिया जी डिप्लॉयड सेल। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक सेल्स, इसमें डाइकैरियोटिक फेज लंबा होता है, अच्छा खासा होता है, which ultimately gives rise to basidium। तो बेसिडियम इसका वो क्लब शेप स्ट्रक्चर है ना, जैसे गोल्फ क्लब होता है, ऐसा तो नहीं होता है, बट ऑल इन ऑल इट इज अ एक्सोजीनस स्पोर्स विल बी फॉर्म्ड। क्लास में मैंने दिखाया है, मतलब एस्कोमाइसिटीज से फर्क हो गया है। Karyogamy and meiosis take place, this is a question। देखिए कितने दे दिया आपको, 27 पे हम पहुंचे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 लिखते जाएंगे। Karyogamy and meiosis take place in the basidium producing 4 basidiospores as is the rule of meiosis। The basidiospores are there you go, exogenous spores। और ये क्वेश्चन आता है कि what is the site of karyogamy and meiosis। cool। क्वेश्चन नंबर 29, आर बेसिडियोस्पोर्स एंडोजीनस और एक्सोजीनस, आया। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। ऐसे बहुत सारे क्लब शेप स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है भाई, दे आर प्रेजेंट इन द फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प्स। सम कॉमन मेंबर्स आर एगैरिकस, एडिबल मशरूम, क्लास में बताया है। क्वेश्चन नंबर 30, यूस्टिलेगो और द स्मट फंगस, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ रैंकर क्वेश्चन, पीपल फॉरगेट द एग्जांपल्स। एंड प्यूसिनिया इज द रस्ट फंगस, शुरू में, फंगस के शुरू में ही इसका मेंशन है। तो भाई रस्ट फंगस कौन सी है, स्मट फंगस कौन सी है, इसके जीनस आपको रटे हुए होने चाहिए। लास्टली ना टेंशन देने वाली इम्परफेक्ट फंगस, ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्वेश्चन नंबर 32, इम्परफेक्ट फंगस बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल, देखो सेक्सुअल फेज को परफेक्ट फेज कहा जाता है फंगस में, तो ये वो फंगस है, ये ना आर्टिफिशियली क्रिएटेड क्लास है, ये कोई नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये वो फंगस है जो सेक्सुअल स्टेज नहीं दिखा पा रही थी। ऐसा माना जाता है कि ये वो एस्कोमाइसिटीज हैं जो ना बस नखरे मार रही है, मैंने क्लास में ये बताया है आपको। So only the asexual or vegetative phases of the fungi are known। Question number 32, when the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into the classes they belong to, Asco or Basidio। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage will be either Asco or Basidio depending on all those 3 factors। हाँ, माइसीलियम तो दोनों में ही सेप्टेट है, फिर अपन देखेंगे उसमें एस्कस बन रहा है या बेसिडियम बन रहा है, एस्को कार्प बन रही है या बेसिडियो कार्प बन रही है, उसके बेसिस पे ड्यूट्रोमाइसिटीज से उठाया मेंबर और डाल दिया रिस्पेक्टिव क्लास में। तो द ओनली मैटर हियर इज कि सेक्सुअल फेज और द परफेक्ट फेज इज एब्सेंट। Later when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out, ऐसा भी हुआ है।
once sexual stages of members were discovered, they were often moved to ascomycetes and basidiomycetes. The deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. क्वेश्चन नंबर 33 ये आ जाता है, एंड उस वक्त हमें लगता है कि भाई क्या मार्क करें, स्पोरेंजियोस्पोर्स मार्क करें, ज़ूस्पोर्स. तो आप मान लेना कि एस्कोमाइसिटीज से शुरुआत हुई तो कोनिडिया से ही एसेक्सुअल, कोनिडिया विल बी द एसेक्सुअल स्पोर. अच्छा, हैरानी की बात ये है, इसको क्यों रखना पड़ा, क्लास क्यों देनी पड़ी, इसमें सेक्सुअल फेज तो नहीं है, लेकिन इसका माइसीलियम देखो बेसिडियो एस्को जैसा है. माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड. क्वेश्चन नंबर 34 ट्रू एंड फॉल्स से क्वेश्चन आया हुआ है. Some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers and help in mineral cycling. Some examples are, these are very important. मुझे पता है तुम इनको इग्नोर करते हो और फिर बाद में पछताते हो. तो बेटा आप ना, जैसे मैं क्लास में एक लिस्ट दे देती हूँ, जो बच्चे पहली बात रेगुलरली क्लास में आना शुरू करो, मैम इज देयर. दूसरा, अपने नोट्स में अभी से एक पेज पर लिखकर कि यार ये एस्को के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये बेसिडियो के हैं और ये ड्यूट्रो के हैं, कहीं पे लगा लीजिए, पेस्ट कर लीजिए. नहीं तो क्लास के नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आप रिवाइज, आपकी गैलरी में रहेगा और उसको आप रिवाइज करते रहे, है ना. आपकी सुंदर सुंदर फोटोज के साथ कहीं ना कहीं पड़ा होगा, उसको देख लीजिए जब भी फ्री हैं. तो भाई ऑल्टरनेरिया सोलानाe, कोलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा इंपॉर्टेंट है, हाँ करना पड़ेगा. अच्छा, इनका मेंशन क्लास 12th में भी है, ये अच्छी बात है. तो हमने आज 35 MCQs किंगडम फंगस से निकाल लिए हैं. आई नो यू लव दिस सेशन, सो शेयर दिस सेशन विद your seniors, with if you know any people who are planning to drop a year or who have dropped a year, 2022 aspirants, 23, 24, even 10th class, 9th class people, है ना, who are aspiring to get the right place and the platform to begin their NEET journey and end it successfully. All right, folks, thank you for attending this class. Ma'am is always happy to meet all of you. I want to repeat that if you have any concerns whatsoever, do not hesitate. Yeah, the Akash Byju's team and I are there, and we are there with you round the clock to take care of all your concerns. Please post your comments and I'll see you in the next class.